پرویز کی طرف سے کوئی اطلاع آئی؟ نہیں لالا، ابھی تو خاموشی ہے۔ کمال ہے، کہاں تو اتنا بے چین تھا اور کہاں بالکل چپ سادھ کر بیٹھا ہوا ہے۔ رات کے پچھلے پہر وہاں ہو بھی کیا رہا ہوگا جس کی وہ سالہ رپورٹ دے گا؟ ابھی تو بیٹا بس سونے والوں کے خراٹے ہی سن رہا ہوگا۔ اصغر نے لالا کو جواب دیا اور پرویز کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگا۔ پرویز کچھ جان لینے کے لیے بے چین تھا اور اس چکر میں کئی بار اس سے ڈبیا فائر کرنے کی اجازت بھی چاہی تھی، لیکن اس نے لالا کی سخت ہدایت کے سبب آدھی رات سے پہلے کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دی تھی۔ خدشہ تھا کہ ایسی صورت میں آس پاس کا کوئی کیمرہ اس منظر کو قید کر لے گا، جس کے نتیجے میں انہیں پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ رات کے پچھلے پہر کی بات الگ تھی۔ آس پاس زیادہ تر کاروباری عمارات ہونے کی وجہ سے اس پر روشنیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں، اس لیے کوئی واضح فوٹیج سامنے آنے کے امکانات نہیں تھے۔ دفتری عملہ بے شک رات میں چھٹی کر جاتا ہوگا، لیکن میڈم ایکس اور اس کے قریبی ساتھی تو مستقل وہیں رہتے تھے اور یہ ممکن نہیں کہ موجودہ حالات میں وہ گدھے گھوڑے بیچ کر سو جائیں۔ لالا نے اس سے اختلاف کیا۔ میں خود پرویز کو فون کر کے معلوم کرتا ہوں۔ اصغر نے اپنے موبائل سے پرویز کا نمبر ڈائل کیا۔ کچھ دیر گھنٹی بجتی رہی لیکن کال ریسیو نہ ہوئی۔ یہ کہاں مر گیا مردود؟ اصغر کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور لب بھینچے نمبر دوبارہ ڈائل کیا۔ اس بار 2 گھنٹوں کے بعد کال ریسیو کر لی گئی۔ کہاں مر گیا تھا اوے؟ اصغر دھاڑا۔ وہی مرا ہے جہاں تم اسے مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ دوسری طرف سے پرویز کے بجائے ایک نسوانی آواز سن کر اصغر اچھل پڑا۔ کون؟ اس نے سر پٹا کر پوچھا۔ وہی جس تک پہنچے گی تم ٹامک ٹویاں مارتے پھر رہے ہو۔ تمسخر اڑانے والے لہجے میں دیے گئے جواب نے اصغر کی بوکھلاہٹ میں مزید اضافہ کر دیا۔ اس کے انداز کی غیر معمولی پن کو محسوس کر کے لالا نے اسے اسپیکر آن کرنے کا اشارہ کیا۔ اگر حامد کے اغوا کے بعد بھی میں اپنی جگہ جمی بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیوقوف ہوں اور یہ نہیں سمجھتی کہ حامد کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ میں یہاں موجود ہوں تو صرف اس لیے کہ میں جانتی ہوں کہ میرا قلعہ ناقابل تسخیر ہے اور کوئی اس میں نقب نہیں لگا سکتا۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور اصغر کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ اسے سجائی نہیں دے رہا تھا کہ جواب میں خود کیا کہے۔ تصدیق یا تردید کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ بولنے والے کی لہجے کے اعتماد بتا رہا تھا کہ اسے ایسی کسی چیز سے غرض نہیں ہے۔ پارکنگ کی طرف سے جو نگرانی کے بندے لگائے تھے تم نے، انہیں ہم نے پرانے تعلق کے لحاظ سے برداشت کر لیا تھا، لیکن تم نے تو حد ہی کر دی۔ اپنے ایک بندے کی جان گوا کر بھی عقل نہیں پکڑی اور ہماری کن سوئیاں لینے کی کوشش کرنے لگے۔ وہ اصغر پر برس رہی تھی اور انداز سے ایسا ظاہر تھا جیسے اسے اس بات سے کوئی دلچسپی نہ ہو کہ اصغر جواب میں کیا کہتا ہے۔ لالا نے اس کا لفظ غور سے سنا اور اصغر کا اشارہ دبا کر اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ اصغر کان سے موبائل لگائے لالا کے اشارے پر کھڑا ہو گیا اور اس کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف بڑھا۔ میرے دفتر کی دیواروں پر کوئی ڈیوائس چسپاں کرنا تو دور کی بات، یہاں سے کسی مچھر اور مکھی کا بھی گزر نہیں ہو سکتا۔ آئندہ ایسی غلطی کرنے کی جرات نہ کرنا ورنہ انجام اپنے ساتھیوں سے بھی زیادہ برا ہوگا۔ اصغر ایک طرف اس کی لنترانے سن رہا تھا تو دوسری طرف لالا کی کاروائیاں دیکھ رہا تھا۔ لالا نے اسے دروازے کے قریب ہی روک دیا تھا اور گاڑی باہر نکلوا رہا تھا۔ گاڑی باہر نکل گئی تو اس نے ڈرائیور کو کچھ ہدایات دی اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اصغر کو اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حیران و پریشان اصغر نے اس اشارتی حکم کی بھی تعمیل کی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ تمہارے ساتھیوں کا کیا انجام ہوا؟ جب اتنا سب کچھ خود بتا رہی ہو تو یہ بھی بتا دو۔ اس بار بالآخر اصغر جھنجھلا کر بولی پڑا۔ جواباً ایک سریلا کہکا لگایا گیا۔ بتا ہی دیتی ہوں، ورنہ صبح تم جا کر لاشیں اٹھواؤ گے، پھر پولیس کی کارروائی اور پوسٹ مارٹم ہوگا اور بڑی دیر میں جا کر یہ بات کھلے گی کہ بیچاروں کی موت پھیپھڑوں میں زہریلی گیس بھر جانے کی وجہ سے ہوئی۔ وہ کیا ہے نا کہ میرے سیکورٹی افسر تھوڑا جذباتی بندہ ہے۔ سسٹم نے جیسے اسے وہ کھڑکی دکھائی جہاں سے ہماری طرف ڈیوائس بھیجی گئی تھی، اس نے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے اس کھڑکی پر ایک چھوٹا سا زہریلی گیس کا بم فائر کر دیا۔ تمہارے آدمیوں کو آئیڈیا نہیں ہوا اور وہ بے خبری میں مارے گئے۔ بڑی بری حالت ہوئی تھی بیچاروں کی۔ مرے ہوئے لوگوں سے تو ان کی بگڑی شکل والی لاشیں دیکھی بھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے بس خاموشی سے ان کے موبائل اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ میں نے سوچا کوئی والی وارث رابطہ کرے گا تو اس کو اطلاع ہی دے دوں گی۔ اس کی مصنوعی ہمدردی پر اصغر کا خون کھولنے لگا۔ ابھی تو امجد کی موت کا غم ہی دل پر تازہ تھا کہ مزید 2 ساتھیوں کے مرنے کی اطلاع دی جا رہی تھی، وہ بھی ایسے زخموں پر نمک چھڑکنے کے انداز میں۔ شدید تیش میں وہ اس عورت کے ہونے کا لحاظ کیے بغیر اسے گالی ہی دینے لگا تھا کہ قریب سے گزرتے ایک لوڈنگ ٹرک کے ڈرائیور نے کان پھاڑ دینے والا زوردار ہارن بجایا۔ ہارن کی آواز اتنی تیز تھی کہ گاڑی کے سارے شیشے بند ہونے کے باوجود نہ صرف آواز نہیں سنائی دی بلکہ لہروں کے دوش پر سفر کرتے میڈم ایکس تک بھی پہنچ گئی۔ تم سفر میں ہو؟ اس نے بے ساختہ چونک کر پوچھا۔ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اصغر نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اعتراض کیوں ہوگا؟
बस इस बात का यकीन हो गया है कि लाला भी तुम्हारे साथ ही मौजूद है। वो समझ गया होगा कि मैं इस कॉल के ज़रिए तुम लोगों की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें बिल से निकाल कर बाहर ले गया है। वो अपने हर नए जुमले से असगर को चारों शाने चित कर रही थी। इस बार भी वो हैरान और परेशान रह गया कि इसे लाला की जिंदा होने की खबर कैसे मिली। लोग कह रहे थे कि असगर के काम करने का अंदाज बिल्कुल लाला जैसा है, और मुझे वहीं शक पड़ गया था कि हो ना हो उस नामुराद की तरह लाला भी जिंदा है। खैर, ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा। मुझसे टक्कर लेने का नतीजा इसे भुगतना ही पड़ेगा। सुन रहे हो ना लाला ईसा, गद्दारी माफ़ नहीं करूंगी मैं। अब वो बराह रास्त लाला से मुखातिब थी। लाला ने असगर को सिलसिला मुनक़ते कर देने का इशारा किया। तोबा तोबा, कैसी खर्राट औरत है। असगर ने एक कान को हाथ लगाते मोबाइल वापस अपनी जेब में रखना चाहा। उठाकर बाहर फेंक दे इसे, वरना वो डायन इसके जरिए तेरी गर्दन दबोचने वाली पहुंच जाएगी। लाला ने इसे रोका और गाड़ी एक खुले मेन होल के करीब ले जाकर रोक दी। असगर का मोबाइल गंदे पानी की गहराई में पहुंचकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। सब साथियों को अंडरग्राउंड होने का बोल दे। कोई किसी से नहीं मिलेगा और न आपस में रब्ता करे। नया हुक्म मिलने तक हर एक खुद पर सूरज की रोशनी हराम कर ले, वरना अपने लोगों को मैडम एक्स के कहर का निशाना बनने से बचाना चाहता था, इसलिए इतने सख्त अहकामात जारी किए थे। कहाँ हो मेरे दिल के करार और आंखों की ठंडक? कहाँ हो मेरे जिगर के टुकड़ों कि तुम तक कोई सदा नहीं पहुँचती? तुम्हारा बाप तुम्हारी जुदाई में भुरभुरी मिट्टी के ढेर की तरह अंदर ही अंदर ढाता जा रहा है। ये न हो कि तुम्हें लौटकर आने में इतना वक्त लग जाए कि इस बूढ़े बाप में इंतज़ार की ताबी न रहे। सदाकत शाह बिस्तर पर दराज मोबाइल की स्क्रीन को देखते हुए बड़े दिलगीर अंदाज में सोच रहे थे। स्क्रीन पर आलम शाह, सजल और आज़म की वो तस्वीरें दिखाई दे रही थी जो भारत रवानगी से कबल एन एयरपोर्ट पर ली गई थी। उस वक्त ये यादगार तस्वीर लेते हुए इन्हें गुमान भी नहीं था कि आने वाले वक्त में वो अपने इन लाडलों के दीदार को भी तरस जाएंगे। इनकी तरसी हुई आंखें अपनी इस बेबसी पर बेख्तियार छलक गई, लेकिन दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने जल्दी से इन्हें आंसू को पूछ लेने पर मजबूर कर दिया। आ जाओ। उन्होंने खंगार कर गला साफ किया और आने वाले को इजाज़त दी। आ जाओ धीरानी। इजाज़त के जवाब में दरवाज़ा खोलकर मोमल ने अंदर झांका तो उन्होंने शोरी तौर पर खुद को बेशाय जाहिर करते हुए उसे पुकारा। आज आप घर आते ही आराम करने कमरे में चले आए और खाने से भी मना कर दिया तो मैं परेशान हो गई। आपकी तबीयत तो ठीक है बाबा सही? वो धीमे कदमों से चलते इनके करीब आई और तशवीश से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी धीरानी। खाना इसलिए नहीं खाया कि उताक में मेहमानों के साथ खा लिया था। शहर वाली फैक्ट्री का मैनेजर आया हुआ था हिसाब किताब दिखाने। बस उसके साथ दिमाग खपाते खपाते थोड़ी थकन हो गई तो मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लूँ। वो बेटी को ये तो नहीं बता सकते थे कि जो फैक्ट्री बेटे की ज़िद पर इसके लिए लगाई गई थी, जिसे इसने चलाना था, इसका हिसाब किताब खुद देखना इतना तकलीफदेह अमल साबित हुआ था कि रगों पे में उदासी और थकन उतर आई थी, इसलिए हल्के फुल्के अंदाज में बहाना बना गए। ना थकाए करे खुद को बाबा सही। हमारे पास जितनी दौलत है वही काफ़ी है। क्या करना है इस दौलत का जिसे इस्तेमाल करने वाले ही मौजूद नहीं? मोमल की आंखों में नमी उतर आई। वो सबसे छोटी थी और कभी किसी जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठाना पड़ा था, लेकिन अब तन्हा दुखों का बोझ उठाना पड़ रहा था। ऐसे न कहो मोमल, इंशाल्लाह एक दिन तुम्हारी अद्दी अद्दा और आज़म वापस आएंगे और हम सब पहले की तरह मिलकर खुशबाश ज़िंदगी गुजारेंगे। कब आएंगे वो? अब इनकी वापसी के लिए कुछ करें ना बाबा सही। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरी धी। तुम रब से दुआ करो कि मुश्किल जल्द से जल्द गुजर जाए। सदाकत शाह के पास इसे बहलाना और इसके सिवा कुछ नहीं था। हुकूमत और सियासी साथियों की अक्सरियत ने पहले ही तोता चश्मी का मुजाहरा किया था, और अब जबकि आलम व सरमद, मफरूर और सजल व आज़म गायब थे, इनका केस बिल्कुल ही सर्द खाने में चला गया था। दुआ तो दिन रात करती हूँ बाबा सही, लेकिन सच ही है कि अम्मा साईं की हालत देख कर मेरी हिम्मत टूटने लगती है। वो दिन ब दिन उस गम में घुलती जा रही हैं और मेरे लिए हर गुजरते दिन के साथ इन्हें संभालना मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर भी इनकी तरफ से मुतमईन नहीं है। ब्लड प्रेशर, शुगर कुछ भी तो कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर यही सूरत हाल रही तो मामलात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। बहन भाई की जुदाई का गम जो था सो था, वो माँ की हालत की वजह से भी बहुत परेशान थी। इन्हें हौसला दिया करो बिटिया। दवाई तो पाबंदी से खिला रही हो ना इन्हें। मैं जो कर सकती हूँ वो सब कर रही हूँ बाबा सही, लेकिन न मेरी दी तसल्ली में असर है न दवाओं में। इनका इलाज सिर्फ यही है कि अद्दी सज्जल और अद्दा साईं इनकी नज़रों के सामने आ जाए। आएंगे इंशाअल्लाह, एक दिन ज़रूर आएंगे। इनका हाथ इसके सर पर जा टिका। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों उस तरफ मुतवज्जो हो गए। इजाज़त दिए जाने पर एक मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। रमज़ान ये रजिस्ट्री देकर गया है साईं। कह रहा था कि कहीं बाहर के मुल्क से आई है और अहम लगती, इसलिए फ़ौरन ही बड़े साईं को दे दो। इसने एक रजिस्टर डॉक का लिफाफा इनके सामने रखा। ठीक है मैं देख लूँगा, तुम जाओ।
उन्होंने इससे कहा और लिफाफा उलट पलट कर देखने लगे। लिफाफा अमेरिका से आया था और भेजने वाली का नाम उजाला नियाज शाह दर्ज था। हैरत और जोश की मिलीजुली कैफियत में उन्होंने लिफाफा खोला। लिफाफे के अंदर एक खत के अलावा सरबा मुहर लिफाफा भी मौजूद था। उन्होंने वो लिफाफा खोलने से पहले खत पढ़ने का फैसला किया। उजाला ने रोमन उर्दू का इस्तेमाल करते हुए लिखा था, चाचा सही आदाब, आपकी खैरियत पूछने की तो हिम्मत नहीं है मुझ में कि अंदाज़ा है कि जो कुछ आपके साथ बीता वो इतना तकलीफ दे है कि कोई भी वालिदैन इसे सह नहीं सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि पे दर पे अपनों को खोने के बाद मैं इस तकलीफ़ को समझने के लायक हो गई हूँ जिससे आप और दीगर घर वाले गुजर रहे हैं। फिरदौस भाभी के खून नाहक का बदला शकील भाई और जलील भाई के खून से अदा हुआ और अब्बा जी अपने सामने अपनी औलाद के जाने का दुख न सह सकें, कब्र में जा लेटे। बेक वक्त इतने अमवात ने मुझ समेत पूरे परिवार को ही बखेर कर रख दिया। फैसल भाई की हालत सबसे ज़्यादा तबाह है। वो मरने से तो बच गए लेकिन हालत मुर्दों से ज़्यादा ख़राब है। गोली का ज़ख्म किसी तो ठीक होने का नाम नहीं लेता। ज़िंदगी बचाने के लिए डॉक्टर्स ने घुटने से ऊपर टांग काट दिए लेकिन अब वो ठीक होते दिखाई नहीं दे रहे। जब दर्द हद से बढ़ जाए तो बच्चों की तरह पिलक पिलक कर रोने लगते हैं और पुकार पुकार कर सजल से माफ़िया मांगते हैं। इन्हें लगता है कि इनके साथ जो कुछ हुआ वो सजल जैसी मजलूम लड़की पर जुल्म का नतीजा है। मुझे भी इनके इस ख्याल से इत्तफाक है, इसलिए मदावे के लिए इन्हें एक मशवरा दिया है। मेरे मशवरे पर अमल करते हुए उन्होंने जो दूसरा लिफाफा भेजा है इसे आप मेरा ख़त पढ़ने के बाद देख लीजिएगा। मुझे एतराफ़ है चाचा साईं के हम सब ने ही कहीं ना कहीं आपको दुख दिया है और हम सभी आपके मुजरिम हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास इतनी देर से हुआ कि हमारे लिए शायद माफ़ी की गुंजाइश भी ख़त्म हो गई है और हम सब अपने हिस्से की सज़ा भुगत रहे हैं। वो हवेली जहाँ बेहद रौनक होती थी किसी कब्रिस्तान की तरह लगने लगी है। इस कब्रिस्तान में रहना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि फैसल भाई और जलील भाई के बच्चों के साथ अमेरिका मुंतकिल हो जाऊं। हो सकता है अमेरिका में फैसल भाई का इलाज मुनासिब हो जाए। अभी यहाँ के डॉक्टरों ने भी कोई हतमी जवाब नहीं दिया, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। फिरदौस भाभी और जलील भाई की बच्चियों को मैंने यहाँ अच्छे तालीमी इदारों में दाखिल करवा दिया है। बच्चियाँ माँ बाप दोनों एक साथ चले जाने पर उदास और तनहा हो गई थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्द नए माहौल में बहल जाएंगी। मैं हम में से किसी के लिए आपसे माफ़ी नहीं मांगना चाहती चाचा सही, पर इन बच्चियों को आसानी और अच्छे मुस्तकबिल के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। इनकी माँ वो वाहिद हस्ती थी जिसने सजल की अपनी विसात से बढ़कर हमदर्दी की और शायद इसी हमदर्दी में मारी गई। जाने खुदा हम गुनाहगारों की सुनता ही नहीं, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन मासूम बच्चियों के साथ साथ मैं और फैसल भाई आपके हक़ में बहुत दुआएं करते हैं और अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि आपको आपकी औलाद से ज़रूर मिलवाए। जिस दिन वो लोग आपसे आन मिले मुझे लगेगा कि हमारे लिए माफ़ी का कोई दर खुल गया है। वस्सलाम, आपकी गुनाहगार उजाला नियाज शाह। सदाकत शाह को एहसास नहीं था कि इस ख़त को पढ़ते हुए इनकी आंखों से मुसलसल आंसू बरस रहे हैं और मोमल इन आंसू से परेशान हो रही है। ख़त ख़त्म करके हुचकियों पर उतर आए तो मोमल में भी ज़ब्त का याराना रहा और इन्हें झंझोड़ते पूछने लगी, क्या हुआ बाबा साईं, कुछ तो बताएं कि इस ख़त में क्या लिखा है और किसने भेजा है। आप इसे पढ़कर यूँ बेकरार हो गए हैं। तुम खुद पढ़कर देख लो। सदाकत शाह ने ख़त इसे थमाया जिसे वो इनकी पांती पर बैठकर पढ़ने लगी। ख़त पढ़कर इसकी अपनी आंखों से भी अश्क सैले रवां की तरह बरसने लगे। जाने कितना जुल्म सहा मेरी मजलूम बच्ची ने कि इन जालिमों की इतनी सख्त पकड़ हुई है। या अल्लाह, अब मेरी बच्ची की मुश्किलात दूर कर दे और इसे मुझसे मिलवा दे। सदाकत शाह तड़प कर दुआ मांगने लगे। मोमल दुआ और अश्क बहाने में इनके साथ थी और दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि सकीना शाह दुआ के ज़ेर असर गहरी नींद सो रही हैं, वरना अगर इस वक्त वो यहाँ होती तो इनका कलेजा ही फट जाता। इस ख़त को संभाल कर मेरे लॉकर में रख देना बेटा, तुम्हारी माँ ये ख़त ना देखे तो मुनासिब है। सदाकत शाह ने से हिदायत दी और ख़ुद दूसरा लिफाफा खोलकर इसके अंदर से बरामद होने वाले कागजात का जायज़ा लेने लगे। एक बड़ी रकम का चेक था, दूसरा तलाकनामा और तीसरा एक मुख्तसर सा ख़त। ख़त में सलाम दुआ के बाद फैसल ने लिखा था, मेरी ज़ात से सजल को कभी कोई सुख नहीं मिला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब वो आपसे मिले तो कम अज़ कम इस नापसंदीदा बंधन की कैद से आज़ाद हो। मेरा जुर्म काबिल माफ़ी होता तो आप लोगों से माफ़ी भी मांग लेता। अब तो बस यही कह सकता हूँ कि जिसने दुनिया बनाई है वो अपने मजलूम बंदों का बदला खुद ही ले लेता है और इसका लिया बदला सबसे सख्त होता है। बेशक मेरे रब तुझसे बढ़कर कोई मेहरबान है न मजलूम की दादरसी करने वाला। मैं तेरे अदल की गवाही देता हूँ और आगे भी तुझसे ही अपने दुखों का इलाज मांगता हूँ। आजिज़ी सदाकत शाह के मिजाज का हिस्सा थी, लेकिन आज तो वो अपने रब के एहसान तले झुके ही जा रहे थे। मोमल ने इनके हाथ से तीनों चीज़ें लेकर इनका जायज़ा लिया। तलाकनामा पढ़ते हुए इसका दिल थोड़ा सा कांपा के कुछ भी सही, तलाक हमारे मुआशरे में हमेशा नापसंदीदा और दुख देने वाली शय रही है, लेकिन फिर से खुद को संभाल लिया।
सजल मजबूरी में जोड़े गए एक नापसंदीदा और तकलीफ दे बंधन से निजात पा गई थी। इस खून के मुकाबले में तलाक की तकलीफ कुछ कम नहीं थी। वो लौटकर इनके दरमियान वापस आ जाती तो इस तकलीफ को भुलाकर दोबारा एक नई और अच्छी जिंदगी शुरू की जा सकती थी। साईं, फुरकान शाह तशरीफ लाए हैं। मोमन ने भी सारे कागजात समेट कर रखे ही थे कि मुलाजमा ने आकर इत्तला दी। अद्दा फुरकान इस वक्त सदाकत शाह ने इसको इत्तला को हैरत से सुना। मुअज्जम शाह की मौत के बाद फुरकान शाह ने खुद को तकरीबन अपनी हवेली तक ही महदूद कर लिया था और जब से सजल का फैसल से निकाह हुआ था वो बिल्कुल भी इनसे मुलाकात के लिए नहीं आए थे। हालात की नज़ाकत अपनी जगह थी, लेकिन इन्हें इस बात का शदीद गम था कि इस निकाह के नतीजे में इनके मुअज्जम की निशानी और इनका इकलौता वारिस इनसे दूर हो गया है। सदाकत शाह इनके जज्बात को समझते इसलिए इनके इन एतराज़ात का कभी बुरा नहीं मनाया था। इन्हें इज्जत से बिठाओ, हमें भी आ रहे हैं, उन्होंने मुलाजमा को हुक्म दिया। फिर इसके जाने के बाद मोमल को मुखातिब करके इससे बोले, अपनी निगरानी में चाय पानी का इंतज़ाम करो बेटा, तुम्हारे मामू साईं की खातिर मदारत में कोई कसर बाकी नहीं रहना चाहिए। जी बाबा साईं, वो फर्मा बरदारी से कहते हुए बाहर निकल गई। सदाकत शाह ने भी ड्राइंग रूम का रुख किया। मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा फुरकान शाह, तुम्हारी अद्दी को भी तुम्हारे आने की खबर होगी तो बहुत खुश होगी। उन्होंने बाकायदा बगलगीर होकर फुरकान शाह का खैर मकदम किया और ज़ुबान से भी इनकी आमद पर खुशी का इजहार किया। अद्दी की तबीयत कैसी है? तबीयत तो मुस्तकिल ही ख़राब रहने लगी है, आज भी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था। थोड़ी देर पहले मोमल ने दवा देकर सुलाया है, वरना तो खुद तुम्हारे आने की खबर सुनकर दौड़ी हुई आती। सदाकत शाह ने उदासी से जवाब दिया, गम का पहाड़ ऐसा टूटा है मेरी अद्दी पर, जीते जी इसके 2 जवान बच्चे और निवासा इससे जुदा हो गए हैं। वो बेचारी सब्र करे भी तो किस पर करे। अगरचे फुरकान शाह जानते थे कि जो कुछ हुआ इसमें सदाकत शाह का कोई कसूर नहीं था, फिर भी इनके लेजे में एक शिकवा सा था। तकदीर जो भी इम्तिहान इंसान के नसीब में लिख दे, हर एक पर सब्र करना पड़ता है फुरकान शाह। वावेला करने से आदमी को आजमाइश और तकलीफ से निजात नहीं मिलती, लेकिन वो सब्र के अजर से महरूम हो जाता है। सदाकत शाह ने इन्हें समझाने की कोशिश की। ऐसा सब्र तो नबियों और वलियों में ही होता है, हम आम से बंदे भला ऐसा कहाँ कर सकते हैं। फुरकान शाह के अल्फाज ने वाज़ेह कर दिया कि वो इनकी नसीहत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। सदाकत शाह ने भी ज़्यादा जोर देना मुनासिब नहीं समझा और मौजू बदलते हुए बोले, और सुनाओ, तुम्हारी ज़मींदारी कैसी चल रही है? लतीफ़ सोमरू के साथ जो कुछ हुआ, इसके बाद तुम्हारी मुश्किल तो आसान हो गई होगी। कम वक्त इस लायक नहीं रहा कि अपनी मक्कारी और बेईमानी से दूसरों को तंग कर सके। लतीफ़ सोमरू न सिर्फ सियासत के मैदान में इनके लिए कांटे बिछाता था, बल्कि ज़मींदारी में भी आए दिन कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा करता रहता था, जिसकी वजह से फुरकान शाह को दुश्वारी पेश आती थी। खुसूसन पानी के मामले में वो इन्हें बहुत ही तंग करता था, जिससे इनकी फसल पर बुरा असर पड़ता था। ज़मींदारी तो ठीक चले, लेकिन सोमरू के बिस्तर से लगने से जिनके कामों में रुकावट आ रही है वो इसका निमुल बदल चाहते हैं। क्या मतलब? फुरकान शाह के जवाब ने इन्हें चुकाया। मतलब बताने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ अद्दा साईं। फुरकान शाह का अंदाज कुछ पुरस्कार सा था। इस बार सदाकत शाह कोई सवाल किए बगैर तजस्सुस आमेज नज़रों से इनकी तरफ देखते रहे। ये तस्वीरें देखिए अद्दा साईं। फुरकान शाह ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हुए इनसे कहा और स्क्रीन इनके सामने कर दी। स्क्रीन पर एक सेहतमंद और खूबसूरत बच्चे की तस्वीर मौजूद थी। ये कौन है? वक्त खासा आगे बढ़ गया था, इसलिए सदाकत शाह पहली नज़र में तस्वीर में मौजूद बच्चे को शिनाख्त न कर सके। इसके नैन नक्श आपको कुछ नहीं बता रहे जो आप मुझसे पूछते हैं, फुरकान शाह ने शिकवा किया। आज़म, सदाकत शाह ने पहचान का मरहला तय कर लिया। कहाँ है ये? इसकी तस्वीर कहाँ से मिली तुम्हें? उन्होंने फुरकान शाह के हाथ से मोबाइल झपट लिया और तस्वीर को गौर से देखते हुए बेकरारी से पूछ रहे थे। कहाँ है ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन यह जानता हूँ कि अगर आप अपने उसूलों में ज़रा सी लचक पैदा कर ले तो मैं अपने मौज़म की निशानी को वापस हासिल कर सकता हूँ। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? सदाकत शाह को एहसास हुआ कि फुरकान शाह किसी गैर मामूली मुतालबे के साथ इनके पास आए हैं। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरा इकलौता बेटा मुझसे जुदा होकर ऐसी दुनिया में जा चुका है जहाँ से वो कभी लौट कर वापस नहीं आएगा, लेकिन ये जो मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, इसे मैं आपके थोड़े से ताउन से दोबारा हासिल कर सकता हूँ। क्या शर्त रखी है इसकी वापसी की? सदाकत शाह नादान नहीं थे जो समझ ना पाते कि आज़म की वापसी के बदले में कोई मुतालबा रखा गया है, कोई ऐसा मुतालबा जिसे पूरा करना अकेले फुरकान शाह के बस की बात नहीं। वो शर्त मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये जान लें कि अगर हमने उनकी बात न मानी तो वो एक एक करके बारी बारी टुकड़ों में आज़म को हमें लौटाएंगे। मैं अपने जिगर के टुकड़े को टुकड़ों में कटने से पहले मर जाऊंगा अद्दा साईं। फुरकान शाह बोलते बोलते न सिर्फ रो पड़े बल्कि
اپنے دونوں ہاتھ بھی ان کے سامنے جوڑ دیے۔ صداقت شاہ کو لگا جیسے کسی نے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں بالکل بے بس کر دیا ہے۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے۔